Now class 12th, let's start with first derivative test because graphs every time is not possible to draw for every function. Suppose now I am taking up one example. For example, you are given this function x cube minus 3x plus 7, and this function, for this function you are asked to find all points of local maxima and local minima for the given function. Now what is it? But stepwise I am going to explain this test. What is it? First step is find f dash x, that is you have to find out the differentiation of this function. So f dash x we have found out for this function, that is 3x square minus 3. Then step 2 is put that f dash x is equal to 0. So we have put that f dash x is equal to 0, 3x square minus 3 is equal to 0. So implies we get x square minus 1 is equal to 0, implies x is equal to plus minus 1. Then third step is represent values of x, that is this plus 1 and minus 1 on number line, and these values are called extreme points. Remember it, these values are called extreme points. So that is plus 1 and minus 1 for this question is extreme values और extreme points है बेटा. इन्हीं में से कोई पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा आपको, और फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वी विल फाइंड आउट. नाउ हाउ वी विल फाइंड? Now after this step 3, what is this? I have in this step 3 I have told represent these values of x on number line, and these values are called extreme points. So on representing it number line like this, minus 1 chota on left and then 1. Now what is the step 4? Find the sign of f dash x in all the above intervals. Now which are intervals? All the above 3 intervals. So what are the 3 intervals here? बट एक ये इंटरवल है, दिस वन एंड दिस वन. सो व्हाट इज दिस? फर्स्ट इंटरवल इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, सेकेंड इज माइनस 1 to 1, एंड दी थर्ड इज 1 to इन्फिनिटी. और ये तीनों इंटरवल्स ओपन इंटरवल्स हैं. सो नाउ व्हाट इज इट? व्हाट आई हैव रिटन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है बेटा? स्टेप 5 है ये. व्हाट इज इट? स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आपने यहाँ से शुरू कर लो, आप कहीं से भी वैसा तो कर सकते हो, बट आप पहले यहाँ से शुरू करो. इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 में एफ डैश एक्स की वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गिविंग पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू. माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 आप कोई भी वैल्यू उठाओ, से आई हैव पिक्ड अप माइनस 2. तो ऑन पुटिंग माइनस 2 हेयर, on putting minus 2 here, what do you get? Minus 2 square is 4, 4 into 3 is 12, 12 minus 3 is 9. So positive you have got, so we have written here positive, क्योंकि इस इंटरवल में आपको पॉजिटिव, आप माइनस 3 माइनस 4 कुछ भी डालो, यू विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव वैल्यू. सो आई हैव रिटन here पॉजिटिव. देन माइनस 1 to 1 इन बिटवीन दिस इंटरवल, 0 इज कंफर्टेबल, सो 0 आप डालो यहाँ बेटा. सो व्हाट डू यू गेट? 0 square is 0, 0 into 3 is 0, minus 3, so what is it? Negative answer you are getting, so we have written here negative. Then again in this 1 to infinity आप कुछ भी डालो, like I have put here 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 is 12, minus 3 9, again what do you get? Positive answer, so I have written here positive. Now what is it बेटे? स्टेप 5 में क्या है? यहाँ पे आपको स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम, ये एक्चुअली यहाँ जब आपने चेक करना है तब आपको लेफ़्ट टू राइट चेक करना है. कैसे? आप -1 के लेफ़्ट से राइट में देखो आपका क्या साइन हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो नाउ सी फ्रॉम -1 फॉर -1 साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. आप जब लेफ़्ट टू राइट में देखोगे तो आपका साइन आई हैव शोन यू पॉजिटिव टू नेगेटिव में चेंज होगा. तो वेन एवर बेटा sign changes from positive to negative, whenever sign changes from positive to negative, that extreme point is a point of maxima. Important, positive to negative जा रहा है तो that is a point of maxima, and so -1 is a point of maxima. और तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी बेटा? विल नॉट बी फाउंड फ्रॉम एफ एक्स. इंपॉर्टेंट है एफ एक्स. आप मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट्स तो आप एफ डैश एक्स से फाइंड आउट करते हो, बट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एफ एक्स है. तो -1 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे आप -1 डालो इसमें, तो -1 क्यूब, देन -3 इंटू -1 प्लस 7, सो वी गेट द आंसर 9. सो दिस इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू. नाउ लेट्स चेक फॉर अनदर. दिस इज अनदर इज +1, दैट इज़, इसके लिए अब आप चेक करो. +1 के लिए बेटा क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो जब आप लेफ्ट टू राइट नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, so whenever sign changes from, this is I have written here,
Now see, for plus 1, sign changes from negative to positive. So whenever sign changes from negative to positive, that extreme point is a point of minima. Got it? ये उल्टा सा है कि पॉजिटिव तक जा रहे हैं तो वो मिनिमा दे रहा है, नेगेटिव तक जा रहे हैं तो वो मैक्सिमा दे रहा था. सो मिनिमा. So here plus 1 is a point of minima. Plus 1 is a point of minima, and minimum value will now be found. And what is the minimum value? Again from fx we will find out, and that minimum value, if you check here, putting 1 here, so you will get answer 5. So this is minimum value. Now अब बेटा अगर सपोज कहीं आंसर चेंज ही ना हो, सपोज एक पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे ए, और पॉजिटिव टू पॉजिटिव भी रह रहा है और या नेगेटिव टू नेगेटिव भी रह रहा है, नो चेंज इन द साइंस, तो व्हाट डू यू राइट? दैट पॉइंट ए, सपोज ये पॉइंट ए है, ए इसके आसपास कोई चेंज नहीं हो रही, तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. गॉट इट? So now this is about your first derivative test, and you can apply it in all the questions, but sorry, you can apply it on in all the questions, but जहाँ पे आपका बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकल सकता है और आप ये कर सकते हो तो आप करो, बट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इज ज़्यादा मोर सिंपलर देन दिस. बट सम क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, कहीं में बोला जाएगा यूजिंग सेकेंड, और कुछ नहीं बोला तो आपको जो कन्वीनियंट लगे यू कैन अप्लाई.